السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جماعت ششم کی مضمون سائنس جنرل سائنس کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا سبق نمبر 1 قدرتی وسائل ہوا پانی اور زمین سبق کو اس ویڈیو میں سمجھایا گیا ہے۔ بچوں، آج کے اس ٹاپک کا نام ہے قدرتی وسائل ہوا پانی اور زمین۔ سب سے پہلا سوال سبق کا نام ہے قدرتی وسائل، تو ہم بتائیں گے آپ کو قدرتی وسائل کیا ہے۔ کرۂ ارض پر یعنی زمین پر جانداروں کی بقا اور ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوا پانی اور زمین جیسے اجزاء اہم ہوتے ہیں اور انہیں قدرتی وسائل کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دی ہوئی شکل کا مشاہدہ کرنا ہے، تصویر کا مشاہدہ کرنا ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ پرندے کہاں ہے، گائے کہاں چر رہی ہے، راستہ درخت کہاں ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے ندی کس سمت سے کس سمت میں بہہ رہی ہے، ہوائی جہاز کہاں ہے، مچھلیاں کہاں نظر آ رہی ہے، ناؤ کس پر تیر رہی ہے۔ دراصل تصویر سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کچھ اجزاء آسمان میں ہیں اور کچھ ہوا میں اور کچھ زمین پر ہے۔ اس طریقے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تمام چیزوں کا تعلق ہوا پانی اور زمین سے ہے۔ اب جب زمینی حصے کو ہم کیا کہیں گے، ہجری کرہ، پانی والے حصے کو آبی کرہ اور جو ہے تو ہوا والے حصے کو فضائی کرہ۔ اب اس طریقے سے ان جانداروں اور ان کے ذریعے ہجری کرہ، آبی کرہ، فضائی کرہ کے جو گھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، جاندار اور ان کے ذریعے جو تینوں کرے ہیں، کون کون سے، ہجری کرہ، آبی کرہ، فضائی کرہ، اس کے گھرے ہوئے حصے کو ہم کیا کہتے ہیں، حیاتی کرہ۔ اب ہم پچھلے جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ کرۂ ارض کے غلاف قدرتی طور پر بنے ہوئے ہیں۔ اب کرۂ ارض کے اطراف فضائی کرہ یعنی ہوا کی تہہ ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتا رہے کرۂ ارض کی سطح پانی اور زمین یعنی آبی کرہ اور ہجری کرہ سے بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بتائیں گے قدرتی اجزاء ٹھوس مائع اور گیس کو ہم قدرتی وسائل بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دراصل ہم کو یہ بتانا ہے کہ زمین ہے اور زمین پر پانی کا تناسب کیسا ہے۔ فضائی کرہ کی 5 تہیں کون سی ہے، ذرا یاد کیجیے۔ یہ معلومات آپ نے سابقہ جماعت میں حاصل کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے ہوا میں جو ہے تو فضائی کرہ کی ہوا میں کون کون سی گیسز ہوتی ہے، نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اس کے علاوہ 6 غیر عامل گیسز جیسے نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، آبی بخارات اور گرد کے ذرات وغیرہ۔ پیارے بچوں، آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سمجھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہوگا، لیکن سائنس کے لیے درسی کتاب نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کو لیکچر سننا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو لیکچر کے دوران جو پوائنٹ بولے جاتے ہیں تو اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ بہت چھوٹی جماعت کے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے سامنے ٹیکسٹ بک رکھیے، یعنی آپ کی درسی کتاب اوپن کر کے رکھیے اور جیسے جیسا ٹیچر سمجھا رہے ہیں آپ اس کو درسی کتاب میں دیکھیے۔ کرۂ ارض میں کل ہوا کی تقریباً 80% ہوا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتایا جا رہا کرۂ متغیرہ میں یہ تناسب 19% ہوتا ہے، کرۂ وسطی اور کرۂ آئیونی میں یہ کم ہوتا جاتا ہے، یعنی جو خلابات اوپر جاتے ہیں تو وہاں آکسیجن کا لیول کم ہوتا جاتا ہے، اسی لیے خلابات اپنے ساتھ آکسیجن کے سلنڈر لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو تصویر بتائی گئی ہے شکل آپ کو 1.3 میں ہوا میں مختلف اجزاء کا جو تناسب ہوتا ہے، جیسے سب سے آسان آپ کو آکسیجن گیس بار بار سنتے ہیں تو آکسیجن کا فیصد کتنا ہے، 21% آکسیجن ہے۔ اس کے علاوہ دوسری گیسز 0.07% ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03% ہے، نائٹروجن 78% یعنی 78% ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہوا میں پائی جانے والی گیسوں کے کچھ استعمال بتائے گئے ہیں۔ نائٹروجن کا کیا استعمال ہے، جانداروں کو ضروری پروٹین کی دستیابی میں یہ مددگار ہوتا ہے۔ آکسیجن جانداروں میں عمل تنفس کے لیے ضروری ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ نباتات میں غذائی عمل یعنی شعاعی ترکیب کے عمل کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ آرگن جو تو بجلی کے بلب میں استعمال ہوتا ہے۔ ہیلیم کم درجہ حرارت حاصل کرنے اور بغیر پنکھوں کے انجن سے چلنے والے جہازوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نیون اشتہاروں اور راستوں کی لائٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کرپٹان جو ہے تو فلوروسینٹ پائپ میں استعمال کی جاتی ہے۔ زینان فلیش فوٹوگرافی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر جو ہوا میں پائی جانے والی گیسوں کے کچھ استعمال بتائے گئے ہیں، بہت ہی کارآمد ہے بچوں، اس کو ذہن نشین رکھیے اور یاد بھی رکھیے۔ یہ بچوں یہاں پر مشاہدہ کر کے بحث کرنا ہے، بحث کیجیے، آپ کو ہدایت دی گئی ہے۔ 3 تصاویر دیے گئے ہیں، تینوں تصاویر میں کیا یکسانیت ہے؟
दरअसल हमें यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों से एक ही चीज़ नज़र आ रही है, धुआं खारिज होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये धुआं सीधा कहाँ पर जा रहा है? फिज़ाई कुर्रे की हवा में शामिल हो जाता, जिसकी वजह से हवा के अज्जा का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। और इसी को हम क्या कहेंगे? हवा की आलूदगी। हवा की आलूदगी किसे कहते हैं? कि हवा में मुख्तलिफ चीज़ों से खारिज होने वाला धुआं जो फिज़ाई कुर्रे को ख़राब कर देता है, फिज़ाई कुर्रे के तवाज़ुन को बिगाड़ देता है, इसको हवा की आलूदगी कहते हैं। जैसे सवारियों, बड़े बड़े कारखानों में ईंधन के इहतराक, इसी तरह लकड़ी, कोयला जैसे ईंधन के अधूरे इहतराक से खारिज होने वाली मुज़िर गैसों वगैरह की वजह से दिन ब दिन हवा की मुसलसल आलूदगी बढ़ती जा रही है। ईंधन के जलने से हवा में खारिज होने वाली मुज़िर अज्जा कौन कौन से? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और धुआं सा है। अब देखिए, ईंधन के जलने से खारिज होने वाले मुज़िर अज्जा देखिए हमने। अब सवाल ये है बच्चों, आपको ओजोन की तह के बारे में बताना है। ओजोन तह जो तो ये एक हमारे फिज़ाई कुर्रे के लिए हिफाजती गिलाफ का काम करती है। ओजोन गैस क्या होती है? देखिए, जो सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआएं जानदारों के लिए मुज़िर होती है, तो ओजोन की तह क्या करती है? इन शुआओं को जज़्ब कर लेती है, जिसकी वजह से पूरे अर्ज पर जो तो जानदारों की हिफाजत होती है। ओजोन की तह को O3 कहा जाता है, यानी फिज़ाई कुर्रे के कुर्रे मुतग़य्यिरा तह के निचले हिस्से में ओजोन की तह पाई जाती है। फिज़ाई कुर्रे का जो कुर्रे मुतग़य्यिरा का जो हिस्सा है तह का, उसके निचले हिस्से में ओजोन की तह पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर ये कि बताना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड गैसेस हवा में शामिल होने से ओजोन की तह बर्बाद हो जाती है। अब यहाँ पर ओजोन की अहमियत का सबको अंदाज़ा हो, इसी 16 सितंबर को दुनिया भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ ओजोन मनाया जाता है। चलिए, अब सफ़ा नंबर 4 चल रहा है हमारा। इस सफ़े पर आपको क्या करना है? पानी यहाँ पर आपको क्या है? सुबह बेदार होने से रात को सोने तक आपके घर में पानी का इस्तेमाल कितना होता है, किस किस काम के लिए होता है, यहाँ एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना है। यानी पानी के इस्तेमाल की वजूहात, यहाँ एक जदवल बताया गया है सफ़ा नंबर 4 पर। आपको नहाने के लिए कितने लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं? मुँह धोने के लिए, कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, पीने के लिए, पकाने के लिए, यानी हर फर्द के इस्तेमाल के लिए आपको कितना पानी दरकार होता है, इस बात का अंदाज़ा होगा। और उसके अलावा ये तो आपके इस्तेमाल की ज़रूरत होगी, लेकिन पीने के लिए पानी आपको पता है कि इंसानी जिस्म के तमाम अफ़आल बेहतर तरीके से अंजाम पाने के लिए हर रोज़ इंसान को कम से कम 3 से 4 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, और पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। आम तौर पर जो है तो आम दर्जे हरारत पर पानी 3 हालातों में पाया जाता है: ठोस, माया, गैस में। अब पानी जो है तो बेरंग होता है, बेबू और बेमज़ा होता है। कई अशिया पानी में आसानी से जो है तो हल हो जाती है, इसीलिए पानी को आफाकी मुहल्लिल कहा जाता है। पानी को क्या कहा जाता है? आफाकी मुहल्लिल। अब आपको ये सवाल वजूहात में पूछा जा सकता है कि पानी को आफाकी मुहल्लिल क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं पानी बेरंग होता है, बेबू होता है, बेमज़ा होता है, और कई अशिया पानी में आसानी से हल हो जाती है, इसीलिए पानी को आफाकी मुहल्लिल कहा जाता है। उसके अलावा आपको खून में नबातात के रूप में पानी का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है। हैवानात में जो खून होता है उसमें, और नबातात के रूप में पानी का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है। कोई भी जानदार पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर आपने छोटे छोटे पौधे देखे हैं, छोटे छोटे पौधे देखे, तो अगर हम उन पौधों को पानी वक्त पर ना दे तो वो पौधे मुरझा जाते हैं और थोड़े दिन में वो सूखकर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? पानी को ज़िंदगी कहते हैं। अब इसके बाद आपको पता है कि पूरे अर्ज पर दस्तयाब जो पानी है, समंदर से बहुत ज़्यादा फीसद हमें पानी हासिल होता है, 97%। लेकिन समंदर से हासिल होने वाला पानी पीने के काबिल नहीं होता है, वो खारा पानी होता है। पीने के काबिल पानी जो मीठा पानी होता है वो 0.3% होता है। अब दरअसल अगले सफ़े पर हम यहाँ पर आपको पानी की तकसीम, ज़मीन पर जो पानी की तकसीम है बहरे आज़म से, यानी समंदर बहरे आज़म से जो पानी की
शक्ल होती है वो हमें दस्तयाब जो हो रहा है। तो पीने के लिए पानी कितने फीसद हो रहा है, बर्फ की हालत या ज़ैर ज़मीन पानी और दिगर पानी, इस चीज़ का हमें मुशाहिदा करना है शक्ल 1.5 में। अब आगे हम चलते हैं, पानी का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए किया जाता है। हमने अभी आपको बताया कि पानी का इस्तेमाल खाना पकाने, नहाने, कपड़े, बर्तन, फर्श, पीने वगैरह के लिए करते हैं। इसके अलावा भी पानी का इस्तेमाल हम बड़े पैमाने पर ज़राअत के लिए करते हैं और पूरे ज़मीन पर बाज़ाब्ता तौर पर आबी दौर के ज़रिए पानी की बाज़ाब्ता तौर पर आबी दौर के ज़रिए क्या होती है, पानी का इस्तेमाल होता है। आबी दौर को ईंधन पहुंचाने का अहम काम बहर आज़म में पैदा होने वाले आबी बुखारात करते हैं और इसके नतीजे में बारिश होकर ज़मीन पर मीठे पानी के ज़राए तैयार होते हैं। ये तो आपको किताब में कहा गया, लेकिन हम आसानी से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पानी कहाँ से हासिल करते हैं। नदी, नालों, तालाबों, झरनों, झीलों से। जैसे जैसे ज़मीन पर पाए जाने वाले कुदरती ज़राए अगर हमारे लिए कम हो जाए तो हम क्या होता, पानी की किल्लत हो जाती। जैसे आमतौर पर आप महसूस करते कि मौसम गर्मा में पानी की किल्लत होती है, यानी आप बोलते बोर को पानी नहीं आ रहा। अगर देहात में बच्चे हैं तो वो कहेंगे कि नदी को पानी नहीं है, नल को पानी नहीं। शहर के बच्चे क्या बोलते हैं, नल को पानी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर पानी की किल्लत महसूस होती है। तो इसीलिए हम कुदरती ज़राए हमारे लिए कौन से पानी हासिल करने के, नदी, नाले, तालाब, झरने, झील। अगर हम इनके अलावा भी अगर कोई ज़राए का इस्तेमाल करते हैं तो इंसान बोरवेल का करता, हैंड पंप जिससे आप हफ्सा कहते हैं, कुएं, ज़ैर ज़मीन पानी हम हासिल करते हैं। साथ ही नदियों पर कई छोटे बड़े बंद बनाए जाते हैं। बढ़ती हुई आबादी, सनअतें, ज़राअत के लिए पानी का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए पानी की किल्लत को कम करने के लिए पानी का इस्तेमाल हमें किफ़ायती से करना चाहिए। पानी रोकने के लिए ये डैम बनाना चाहिए, बंद बनाना चाहिए और इसके अलावा छोटे पैमाने पर पानी रोके, पानी जज़्ब करे, ऐसे छोटे छोटे मंसूबे बनाना चाहिए। पानी को जो है तो सेविंग करके, यानी पानी को हिफाजत से एक जगह जमा करने के लिए हमें छोटे टैंकियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ज़मीन किस शय की बनी होती है, बताइए तो भला। आपको अब यहाँ पे सवाल है, ज़मीन किस शय की बनी होती है, ज़मीन पर क्या क्या नज़र आता है। इंसान ने ज़मीन पर क्या क्या बनाए हैं। इंसान ने ज़मीन पर घर बनाए हैं, बिल्डिंग बनाए हैं, सनअतें बनाए हैं, कारखाने बनाए हैं। और ज़मीन पर हमें क्या क्या नज़र आता है, दरख्त नज़र आते हैं। अब बच्चों को पता चल गया कि ज़मीन किस शय की बनी हुई है। आमतौर पर बच्चे बोलेंगे ज़मीन मिट्टी की बनी हुई है। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हमें ज़मीन, पत्थर, मिट्टी बड़ी बड़ी चट्टानों की शक्ल में नज़र आती है, वो हर जगह हमवार नहीं होती। इससे पहले जमात पंजुम में आपको ज़मीन की शक्लें बताई गई है, जिसमें सतह मुर्तफ़ा बताया गया, नदी, पहाड़, उसके अलावा जो है तो आपको झील, ये तमाम चीज़ें ज़मीन के ऊपर जो है तो ज़मीन की शक्लें हैं। ज़मीन कहीं पहाड़ी है तो कहीं हमवार है। इंसान और तमाम बर्री हैवानात, यानी जो हैवानात हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। कुछ हैवानात ज़मीन के अंदर यानी बिल बना कर रहते हैं, जैसे सांप है, चूहे हैं। उसके अलावा हम ज़मीन का इस्तेमाल घर बनाने के लिए करते हैं, ज़राअत के लिए करते हैं, रास्तों के लिए करते हैं। ज़मीन भी हमारे लिए अहम कुदरती वसीला है। आइए अब हम सफ़ा नंबर 6 की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर 6 में आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा 1.7 में एक पानी की बोतल जो खाली होती, बिस्लरी की पानी की बोतल, वो लेना है और उसके अंदर पहले बड़े कंकड़ डालना है, उसके बाद छोटे कंकड़ डालना है, उसके बाद रेत, फिर मिट्टी, कीचड़, फिर उस सबसे ऊपरी तह पे आपको क्या करना है, दरख्तों के सूखे हुए पत्ते डालना है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि ज़मीन की तह किस तरीके से होती है। पूरे अर्ज पर ज़मीन भी ऐसी ही होती है। अगर आपने ये बॉटल में तरतीबवार जमाए तो सफ़ा नंबर 6 पर दरसी किताब के पेज नंबर 6 पर आपको जो शक्ल बताई गई है 1.7, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि ज़मीन की शक्ल जो है तो ज़मीन की तह जो है तो कितने हिस्सों की होती है। अब देखिए, पूरे अर्ज पर ज़मीन भी ऐसी ही होती है।
पुख्ता मिट्टी की ज़मीन में सबसे ऊपर की तह नबातात और हैवानात के बाक़ियात के सड़ने से बनती है। अगर पुख्ता मिट्टी की ज़मीन में सबसे ऊपर की जो बात करें, हम तह की बात करें, तो वो दरअसल नबातात और हैवानात के बाक़ियात के, यानी जो हैवानात सड़ जाते गल जाते तो उनके जो बाक़ियात रहते हैं उससे बनती है। उसे हम क्या कहते हैं? रकाजी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रकाजी मिट्टी कहते हैं। और ये तह आमतौर पर घने जंगलात में पाई जाती है। आप समझ रहे होंगे कि मिट्टी तैयार करने का अमल, हम चलो आज बोल दिए, आपने कल मिट्टी तैयार कर दिया, ऐसा नहीं होता है। मिट्टी तैयार होने का अमल ज़मीन पर मौजूद ये कुदरती अमल है। ज़मीन पर मौजूद मिट्टी तैयार होने का अमल ये कुदरती है और इसके लिए हज़ारों साल लग जाती हैं। चट्टानों की झीज से मिट्टी के लिए गैर हयाती अज्जा मुहैया होते हैं। धूप, हवा, बारिश, इनसे पैदा होने वाली गर्मी, सर्दी और पानी की वजह से बड़ी चट्टानों के टुकड़े होते हैं और इनसे बड़ी चट्टानें जब टुकड़े होकर गिरती है तो इनसे कंकर, रेत, मिट्टी तैयार होती है। और ये मिट्टी तैयार होने का अमल मुसलसल जारी रहता है, लेकिन बहुत ही सुस्त रफ्तारी से, बहुत ही धीमी रफ्तारी से होता है। और पुख्ता मिट्टी की 2.5 सेंटीमीटर की मोटी तह तैयार होने के लिए, सिर्फ एक तह तैयार होने के लिए 2.5 सेंटीमीटर की जो एक तह होती है उसके लिए हजारों साल दरकार हो जाते हैं। अब उसके बाद एक ज़माने में पूरे अर्ज पर होने वाली उथल पुथल की वजह से जंगल ज़मीन में दफन हो गए। इसके बाद जानदार की बाक़ियात से ज़मीन में रकाजी ईंधन बनने का अमल हुआ और जो रकाजी ईंधन बनने का अमल हुआ तो इसे मादनी तेल जैसे रकाजी ईंधन से हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह चीज़ें, मुफीद अशिया हासिल हुई है। अब इसके बाद हमें आपको ये बता रहे हैं, ज़मीन 29% है, पीने के लिए पानी 0.3% है और ऑक्सीजन 21.03% है। अब इसके बाद हम देखेंगे सफ़ा नंबर 7 होगा मुकम्मल, सफ़ा नंबर 8 पर। ये पूरा मुकम्मल सबक पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर इस सबक में कुदरती दौलत के बारे में पढ़े हैं, हवा, पानी और मिट्टी के बारे में। अब सवाल ये है कि आपको हमने क्या सीखा में पहला पॉइंट, कुदरती वसाइल किसे कहते हैं? जानदारों की जो बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने और कुदरत से हासिल होने वाले अज्जा को हम कुदरती वसाइल कहते हैं, जो हवा, पानी और मिट्टी है। हवा, पानी और ज़मीन एक अहम कुदरती वसाइल है। ज़मीन और मिट्टी एक नहीं होती है, इनमें फ़र्क होता है। अब ज़मीन में हयाती और गैर हयाती दोनों अज्जा शामिल होते हैं। उसके बाद वाला पॉइंट देखिए, हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैर आमिल गैसेस, आबी बुखारात, गर्द के ज़रात जैसे अनगिनत अज्जा पाए जाते हैं। ओजोन की तह पूरे अर्ज का हिफाजती गिलाफ है। कुदरती वसाइल को एहतियात और किफ़ायतशारी से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर आपका सबक नंबर 1 मुकम्मल होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मशक़ी सवालात व जवाबात बताए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।